बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, गेट नॉलेज चैनल में खुशामदीद। आज जिस टॉपिक की ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो है सोलर ड्रायर। Solar dryer is a device that uses solar energy to dry foods and other materials. It is an eco-friendly and cost-effective alternative to traditional methods of food preservation and drying. The use of solar dryer has gained popularity in recent years due to their sustainability and low cost of operation. This article will explore the components of solar dryer, how it works, the benefits of using a solar dryer, and how to build one. First of all, we will discuss about the components of solar dryer. A solar dryer is made up of several components. Contains a collector, a drying chamber, and a fan. The collector is a flat or a curved surface that absorbs solar radiation and convert it into heat. The drying chamber is an enclosed space where the food or materials to be dried is placed. The fan is used to circulate air through the drying chambers, which helps to remove moisture from the food or material. Note that fan is not a compulsory component. It is an auxiliary or optional component. If we can't install fan, then we must provide a ventilation duct to remove the air. Now here this is a diagram of the solar dryer. Here you see a blue line is a collector that collect solar lights on it, and solar light will be absorbed here, and here there are three types of solar radiation: ultraviolet, infrared, visible. Okay, so solar light here are absorbed, and here this is the insulated space where agriculture products such as rice, potatoes are placed in this chamber. When solar light are fall on this surface, it will be absorbed, and this light, solar light, which contains heat energy, will dry the food available in the chamber. So here from this portion cold air is in, and here from hot air out, because due to solar radiation, heat energy, cold air will be hotted, and this hotted air will be drawn from this duct, and this chamber is insulated. Okay, black absorber plate, because black color is a highly absorbable. Here you see an other figure. Here are the practical examples of the mass production level agriculture product is dried. Here no any electric component is necessary. Only we use benefits of solar energy. When solar radiations fall on this surface, visible light or this radiation will be absorbed in this, and air, a room or enclosed space will be heated. Whatever the things or stuff available in this will be dried out. Now how solar dryer works? Solar dryers works by harnessing the power of the sun to heat air, which is then circulated through the drying chamber. उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि जब सोलर रेडिएशंस सरफेस के ऊपर फॉल होगी तो वो फॉल्स एब्जॉर्ब होंगी, और वो जो अंदर स्पेस होगी उस चेंबर में उसको गर्म करेंगी, और गर्म हवा उस चीज़ को, फूड स्टफ को, वो उसको जो है ना उसमें से मॉइस्चर्स को रिमूव करके उसको ड्राई करेगी. The collector absorbs solar radiation and heat the air.
which is then forced into the drying chamber by the fan. अब जो कलेक्टर है वो जब सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो चेम्बर में जो हमारी एयर मौजूद होगी, कोल्ड एयर या नॉर्मल एयर, उसको वो हीट करेगा, ठीक है। और इसमें हम जो एयर हैं उसको हम दो तरीक़ों से उसके ऊपर, स्टफ़ के ऊपर फॉल करवाएंगे। या तो हम एक फ़ैन लगा देंगे ताकि वो फ़ैन जो है ना फोर्सली उसको, एयर को उस स्टफ़ के ऊपर पास करे, ताकि वो हमारा जो है ना ड्राइंग एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा रहे। अगर हम फ़ैन इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हमारा पास ये नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें वो नेचुरल तरीके से जो हीट है, गर्म एयर, वो फ्लो होगी और वो वेंटिलेशन डक्ट से आउट हो जाएगी। इस तरीके से हमारा जो फूड स्टफ है, वो स्टफ है, वो हमारा ड्राई हो जाएगा। The warm air circulates around the food or material, removing moistures and drying it out. तो जो गर्म हवा बन गई सोलर रेडिएशन की वजह से, जो उसने ठंडी हवा को गर्म किया, वो उस चेम्बर में सर्कुलेट हो जाएगी और उस मटेरियल में जो हमारा एग्रीकल्चर यूजुअली प्रोडक्ट होता है, जैसे एप्पल, पोटैटो, डेट्स, उनमें से जो मॉइस्चर्स कंटेंट होंगी वो हमारी रिमूव कर देगी। ओके, द मॉइस्चर इज कैरीड अवे बाय द एयर एंड एग्जिट्स द ड्रायर थ्रू अ विंड। तो वो मॉइस्चर जो उस एयर में मौजूद हो जाएगी, वो उसमें से एयर को एग्जिट करेगी ड्रायर से थ्रू वेंटिलेशन डक्ट्स के हिसाब से। ये एक और फिगर हमारे अवेलेबल है कि यहाँ पे एक देख सकते हैं कि सनलाइट की रेडिएशंस इस कलेक्टर के ऊपर फॉल कर रही है और वो फॉल, क्योंकि ये हाईली जो है ना मटेरियल यहाँ से एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। तो यहाँ से ये एक ड्राइंग चेम्बर है जिसमें हमने कोई भी फूड स्टफ रखा हुआ है, ठीक है। और यूजुअली जो कलेक्टर का जो इंक्लिनेशन है वो किसी लोकेशन जहाँ पे वो साइड पे पड़ा होता है उसकी लैटिट्यूड के हिसाब से होता है, ताकि वो थ्रू आउट ईयर मैक्सिमम जो है ना सोलर रेडिएशन को कलेक्ट कर सके। ओके, तो यहाँ से वो फूड स्टफ हमारा या बायोमास अवेलेबल होता है जिसको हमने ड्राई करना होता है, और यहाँ से जो है ना सर्कुलेट कर जाएगी एयर और ये फोर्सली या नेचुरल तरीके से फिल हो जाएगी और डक्ट के थ्रू ये हमारी आउट हो जाएगी। ओके, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सोलर ड्रायर। देर आर मैनी बेनिफिट्स टू यूजिंग अ सोलर ड्रायर। इनिशियली इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का या एनर्जी का खर्चा नहीं है, तो ये इसकी ऑपरेशनल कास्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो जाती है। तो इसमें हमारा जो फूड प्रिजर्वेशन की जो है एक सस्टेनेबल मेथड है, जिसमें हम नेचर की तरफ से गिफ्टेड सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। एंड इट इज़ यूजेस फ्री एंड अबंडेंट एनर्जी फ्रॉम द सन। और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो लोकल अवेलेबल मटेरियल्स हैं उसी से हम ये फैब्रिकेट करते हैं। इट आल्सो रिड्यूस द नीड ऑफ electricity or other fuels which can be expensive and contribute to carbon emissions। क्योंकि इसमें ये एक नेचुरल तरीके से हमारा प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें कोई फ्यूल कास्ट या इलेक्ट्रिसिटी कास्ट नहीं होगी, और ये हमारा एक चीप और सस्ता हमारा मेथड है जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ के ये इन्वायरमेंटल बेनिफिट है, क्योंकि आम तौर पे कन्वेंशनल फ्यूल को अब जब बर्न करते हैं तो बहुत सारे जो है ना एलिमेंट्स जैसे कार्बन, सल्फर, ये इमिट हो जाते हैं, मगर इसमें ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ से इमिट वगैरह नहीं होगी। सेकेंडली, यूजिंग अ सोलर ड्रायर कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ड्राइड फूड और मटीरियल एज द लो टेम्परेचर used in the drying process help to preserve nutrients and flavors. Additionally, using a solar dryer can reduce waste and increase food security by enabling communities to preserve and store food for longer periods. अगर हम कंपेयर करेंगे कि अगर हम कन्वेंशनल मेथड से जो यूज़ करते हैं, लेट सपोज के
आम हवा में तो बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स उस फूड के ऊपर इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो उससे उनकी क्वालिटी जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो दूसरी चीज़ और क्योंकि वो नेचुरल फ़्लो भी होता है एयर का, तो उसमें उसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं रहती। तो ये सोलर ड्रायर में क्वालिटी भी अच्छी रहती है और उसकी ड्राइनेस भी जो है ना बेहतर होती है। बिल्डिंग ए सोलर ड्रायर इज a सिंपल एंड अफोर्डेबल प्रोसेस, जिसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस प्रोसेस नहीं होता। अगर हम सिंपल डिज़ाइन करके किसी आम टेक्नीशियन को देंगे तो वो भी इसको फैब्रिकेट करेगा, उसमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। Following are the steps to build a basic solar dryer. First of all, choose a suitable location for the solar dryer. जिस जगह पे हमें इंस्टॉल करना होता है उसको हमें सेलेक्ट करना होगा। सेकेंड, इट शुड बी अ सनी स्पॉट विथ गुड एयर सर्कुलेशन। ऐसी क्लोज कंजस्टेड एरिया ना हो जिसपे एरिया जो है ना जो एयर हो वो सर्कुलेट ना हो जाए, और जहाँ पे सोलर रेडिएशंस की भी फॉल ज़्यादा हो। ऐसा नहीं कि शेड के ऊपर हमने रख लिया। बिल्ड अ वुडन फ्रेम फॉर द कलेक्टर एंड ड्राइंग द चेम्बर। ओके, जैसे वुड फ्रेम बनाया या स्टील का एल्यूमिनियम का बना के कलेक्टर को वहाँ पे हम इसको ड्राइंग चेम्बर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपल ये एक प्रैक्टिकल फिगर है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि सोलर रेडिएशंस फॉल हो रही हैं। ओके, ये ग्लास का ट्यूब है, ठीक है, कलेक्टर है जिससे विजिबल लाइट और यहाँ से एब्जॉर्ब होंगी, और यहाँ से कोल्ड एयर जहाँ से वो एयर नेचुरली वो इसमें मौजूद होती है। अब ये सोलर रेडिएशंस इस कोल्ड एयर को हीट करेंगी। हीटअप करने के बाद वो हीटेड एयर जो है ना वो ऊपर की तरफ जो है ना मूव करेगी, और यहाँ से हमने डक्ट लगा दिया हॉटेड एयर को, ठीक है। और ये पूरा का पूरा इंसुलेटेड होता है ताकि हमारी लॉसेस कम से कम हो जाए। ओके, और ये जो फूड हमारा अवेलेबल है यहाँ से हमने इसको ड्राई कर दिया। ओके, ये हमारा प्रोसेस इस तरीके से होगा। थैंक यू।